چلیے اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کے لیکچر میں جب ہم یہاں جمع ہوئے تھے تو ہم نے کچھ باتیں اس وقت دیکھی تھی علم کیمیا یا کیمسٹری کے کچھ بنیادی تصورات کے تعلق سے. تو بہت بنیادی سی باتیں ابھی تک کہ ہم نے دیکھی تھی کہ علم کیمیا میں، کیمسٹری میں ہم مادے کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں. مادہ کیا ہوتا ہے اس بات کو ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی. مادے کو ہم نے جان لیا، پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مادے کی حالتیں کون کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مادے کی حالتوں کے تعلق سے جو بات ہمارے سامنے آئی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ مادے کی ویسے 3 حالتیں ہیں. ایک ٹھوس، دوسری مائع یعنی کہ جسے ہم رقیق کہتے ہیں، اور تیسری جو حالت ہے جو کہ گیس ہے. تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں مادے کی، یہ ہم نے دیکھا. ویسے بس آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یاد رکھ لیجیے کہ ان 3 کے علاوہ بھی کوئی اور حالتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ٹھوس مائع گیس کے علاوہ؟ کچھ پتا ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے، اینی ون فرام دا آن لائن منڈلی؟ دیکھیے کسی کو نہیں پتا تو دیکھ لیجیے. جو 3 تو مشہور ہے ہمارے پاس، سالڈ، لکوڈ، تیسرا گیس. ٹھیک ہے، یہ 3 ہے. اب اس کے علاوہ اور بھی کچھ مادے کی حالتیں ہیں جو اتنی مشہور نہیں ہے. یہ آگے کچھ حالتیں ان کے بارے میں جو ابھی ہمیں یہاں پر نہیں پڑھنا، لیکن سن لیجیے. ایک جو اسٹیٹ سے کہا جاتا ہے پلازما اسٹیٹ یا پلازما حالت اسے کہا جاتا ہے. پلازما حالت یا پلازما اسٹیٹ یہ کون سی اسٹیٹ ہوتی ہیں؟ یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جب درجہ حرارت کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. جب بہت زیادہ درجہ حرارت کے اوپر مادے کے جو الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس حالت کو پلازما حالت کہا جاتا ہے. جو اپنا سورج ہے، سن، وہ ابھی پلازما حالت کی ہی ایک شکل ہے، کیونکہ وہاں پر درجہ حرارت بہت شدید، بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو ایک پلازما حالت بھی ہے. پھر ایک اور آپ سمجھ لیجیے، ایک سپر کولڈ اسٹیٹ بھی ہوتی ہے. ان کے بارے میں جو ہے بہرحال پھر کبھی ہم تفصیلات دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ 3 جو مشہور ہے ابھی ہمیں ان کے بارے میں یہاں کچھ باتیں دیکھنا ہے. جیسا کہ ٹھوس، رقیق اور گیس. ٹھیک ہے، اب ان تینوں کے درمیان میں جو فرق ہمیں دیکھنا تھا ان کے بارے میں، جو ایک بات تو ہم نے کل دیکھی کہ جو کوئی بھی ٹھوس ہوتا ہے، ٹھوس کے ذرات ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گے، جبکہ مائع میں انہی ذرات کا درمیانی فاصلہ بہت بڑھ جاتا، اور گیس میں تو بہت ہی زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ ان تینوں کے درمیان میں ایک فرق تو یہ ہو گیا. پھر اسی طریقے سے ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھی ان کے حجم اور ان کے کیا شیپ کے تعلق سے. یاد ہے آپ کو ان کی شکل اور حجم؟ ٹھوس، اس کا حجم مقرر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حجم مقرر ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کی شکل بھی مقرر ہوتی. جبکہ رقیق، اس کا حجم مقرر ہوگا لیکن اس کی شکل مقرر نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا تھا گیس کا نہ حجم مقرر ہے، نہ اس کی شکل مقرر ہے. دونوں میں سے کوئی بھی چیز اس کی مقرر نہیں ہوتی ہے، ناٹ فکس، نہ والیوم نہ شیپ. چلیے اب جو ہے ایک اگلے نقطے کی طرف ہم اپنے بات کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں، وہ یہ کہ مادے کی ان تینوں حالتوں کو درجہ حرارت اور دباؤ کے حالات کو تبدیل کر کے آپس میں بدلا جا سکتا ہے. سمجھیے، مثال کے طور پر ہمارے پاس میں آئس، برف ہے ابھی ہمارے پاس میں برف. اب برف کو ہمیں تبدیل کرنا ہے مائع حالت کے اندر. برف تو ٹھوس حالت میں ہوگا، اب اگر اسے مائع حالت میں تبدیل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ برف کو ٹھنڈا کریں گے یا گرم کریں گے؟ گرم کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے برف کو ہم نے گرم کیا، برف کا بن گیا پانی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہ ایک علامت کو، جب کبھی ہم کسی کو درجہ حرارت دیتے ہیں تو یہ تیر کے نشان کے اوپر کیا لکھ رہا آتا ہے؟ مثلث. اور جو ٹرائنگل بنا ہوا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو درجہ حرارت دینا، گرم کرنا، یہ علامت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے برف کو گرم کیا تو کیا بنے گا؟ پانی. ٹھیک ہے، مطلب یہاں پر تو تھا ٹھوس، اور آگے جو کوئی بھی ٹھوس حالت تھی ہماری وہ کس میں تبدیل ہوگی؟ ٹھوس، ارے ٹھو نہیں، ٹھوس، ٹھوس، ٹھوس. ٹھوس کس میں تبدیل ہو گیا؟ مائع میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے اب اگر ہم کیا کریں، جو مائع حالت ہے جو پانی، اس کو مزید گرم کرے، تو مزید گرم کرنے سے وہ کون سی حالت میں چلا جائے گا؟ گیس کی حالت میں چلا جائے گا، برابر، ٹھیک ہے، وہ گیسی حالت میں چلا جائے گا، مطلب یہاں پر وہ کیا بن جائے گا؟ بھاپ، ٹھیک ہے، یہاں پر بن جائے گا بھاپ، پانی کی بن جائیں گی بھاپ، ٹھیک ہے، اور جو مائع ہے اس کا مطلب وہ چلے گئے یہاں پر گیس کی حالت، ٹھیک ہے۔ تو ایک فرق یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی ٹھوس شے ہے اس کو اگر ہم کو مائع میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کو درجہ حرارت میں اضافہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن اسی کا معاملہ اگر ہم کو ریورس کرنا ہے، الٹا کرنا ہے، کہ اگر ہمارے سامنے گیس ہے اس کو مائع میں تبدیل کرنا ہے تو درجہ حرارت میں کمی کرنی ہوگی یا اضافہ کرنا ہوگا؟ کمی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کو نیچے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹھوس ہے اس کو اگر ہم گرم کریں گے تو گرم کر کے کون سے حالت میں آ جائیں گی؟ رقیق، کہ آپ دیکھیں جو ایرو کا نشان ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ رقیق کی طرف ہے، ایرو کو آپ تیر کے نشان کو دیکھیں، اور رقیق کو گرم کر کے کون سی حالت میں لایا جا سکتا ہے؟ گیس کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور گیس کو ٹھنڈا کر کے رقیق حالت میں، رقیق کو ٹھنڈا کر کے ٹھوس حالت میں، کہ ان کی جو شکلیں ہیں ان شکلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے درجہ حرارت میں کمی اور زیادتی کر کے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اتنی یاد رہیں گی، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا معاملہ اسی طریقے سے، کیونکہ دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ جب کبھی کوئی چیز ٹھوس حالت میں ہوتی ہے، مطلب ٹھوس ہے تو اس کے جو کوئی بھی ذرات ہیں وہ کیسے بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب ہے، ٹھوس کے جو ذرات ہیں ایک دوسرے کو بالکل لگ کے ہیں، قریب قریب ہے۔ اب جیسے ہی ہم اس کو درجہ حرارت دیتے ہیں، اس کو ٹیمپریچر اس کا بڑھایا جائے گا، تو ٹیمپریچر بڑھانے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ذرات ہیں ان کو توانائی مل جاتی۔ اب کسی کو توانائی مل گئی مطلب کیا آ گئی؟ طاقت، اور جیسی طاقت ہے تو اس کو مستی بھی آتی، جگہ پہ بیٹھیں گا وہ نہیں بیٹھیں گا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اس کی اچھل کود چالو ہو جائے گی، تو اچھل کود کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے گا، درمیانی فاصلہ بڑا، ٹھوس حالت سے وہ آگے مائع حالت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ہم نے اور یہ کیا کہ درجہ حرارت میں مزید اضافہ کیا، رکے نہیں ہم، مزید اضافہ اگر کریں گے تو اور مستی آئیں گی، جو ذرات کا درمیانی فاصلہ ہے وہ تو بہت بڑھ گیا، ٹھیک ہے، تو جب بہت زیادہ فاصلہ ان کے درمیان کا بڑھ گیا تو وہ چلے گئے گیسی حالت کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کا الٹا جب درجہ حرارت کم کریں گے قریب قریب آتے چلے جائیں گے، اور یہی معاملہ اس طرح سے ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس کا ایک نتیجہ آپ یہ بھی نکال سکتے کہ جب کبھی ہم کسی ٹھوس چیز کو اگر ہم درجہ حرارت دیں، کوئی ٹھوس چیز ہے تو وہ ٹھوس چیز کے ذرات آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو جانے لگتے ہیں، اگر ہم مائع کو بھی دیں گے تو اس کے ذرات بھی آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور جانے لگیں گے، گیس کو بھی دیں گے تو اس کے بھی ذرات آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور جانے لگیں، کہ جتنا درجہ حرارت ہم بڑھاتے چلے جائیں گے تو کسی بھی چیز کے ذرات کا درمیانی فاصلہ بھی ایک دوسرے سے بڑھتا چلا جائے گا، صحیح ہے بات یہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، درجہ حرارت سے کسی بھی مادے کا پھیلنا، یہ نقطہ آپ یاد رکھیں کہ درجہ حرارت میں اضافے سے مادے کا پھیلاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے آپ کہ بہت ساری بار گرمی کے دنوں کے اندر ٹائر جلدی پنکچر ہو جاتے ہیں، ٹائر جلدی پھٹ جاتے ہیں، کیوں ہوتا؟ کہ ٹائر کے ٹیوب کے اندر جو ہوا بھری ہوئی، اب ہوا نے تو اپنی جو جگہ لینی تھی لے لی تھی، لیکن آپ گرمی کے دنوں میں دھوپ میں گاڑی لے کر نکل گئی یا دھوپ میں آپ نے گاڑی پارک کر دی، تو ہوتا یہ کہ ٹائر کے اندر کی جو ہوا ہے، درجہ حرارت سورج کی کرنیں پڑنے کی وجہ سے ہوا پھیلنے لگتی، جب ہوا پھیلیں گی اور اندر اتنی جگہ میسر نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ٹائر پنکچر ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں، کہ اب جیسے آپ گاڑی چلائیں گے کسی پتھر وغیرہ کے اوپر بھی اگر آپ کے گاڑی کا ٹائر ہو تب اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہول ہو جائیں گے، تو ٹائر پوری طرح سے تن چکا ہے کیونکہ اندر ہوا پھیل چکی، تو اسی لیے کیا ہوتا، جو ہوا بھرنے والے ہوتے ہیں وہ گرمی کے دنوں کے اندر کچھ ہوا کم بھرتے ہیں اس کے اندر،
थोड़ी सी हवा कम ही रखी जाती है, क्यों? ताकि अंदर जगह बाकी रहे, और गर्मी की वजह से अगर गैस फैलना चाहती हो तो फैलने के लिए उसको जगह अंदर मौजूद हो, ठीक है। तो दर्जा हरारत देने की वजह से मादा फैलता है। मोम ठोस हालत में होता है कमरे के दर्जे हरारत पर, लेकिन उसी मोम को आप गर्म करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है लिक्विड माय हालत के अंदर आने लगता है, फिर ठंडा कर दिया तो वापस ठोस हालत में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मामला हम देखते हैं कि दर्जे हरारत। तो मादे की इन तीनों हालतों को एक बात तो हमने देख ली, किसके जरिए से बच्चों? दर्जे हरारत। तो मादे की हालत को तब्दील किया जा सकता है दर्जे हरारत में तब्दीली की मदद से, ठीक है। दर्जे हरारत तब्दील कर दो, मादे की हालत भी तब्दील हो जाएंगी। तो ये तो एक बात हुई। मादे की हालत तब्दील करने के लिए पहली चीज क्या है? दर्जे हरारत। अब जो दूसरी चीज हमको देखना है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दबाव, ठीक है। दबाव मतलब प्रेशर। क्या? प्रेशर, ठीक है। इसको भी समझ लेते भैया मिसालों से। आपने देखिए घर के अंदर जो रसोई गैस होता है उसका नाम सुना होगा, उसको कहा जाता है एलपीजी। पता है आपको? एलपीजी। किसी को पता है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन मंडली, एलपीजी का मतलब फुल फॉर्म एलपीजी, ठीक है। एलपीजी किसी ने आंसर किए है, नो सर आंसर किए, कोई बात नहीं। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड गैस, ये दो बातों के ऊपर। लिक्विफाइड मतलब माय हालत में लाई हुई पेट्रोलियम, क्योंकि वो पेट्रोलियम मसनूआत से हमको मिलती है। तो माय हालत में लाई हुई गैस क्या है? तो असल में क्या वो गैस है, क्या वो गैस। लेकिन किस हालत में गैस है वो? लिक्विफाइड मतलब माय हालत के अंदर गैस। भाई गैस है क्या माय हालत में? दोनों बातें तो अलग अलग होती है भाई। ये क्या बात होगी? ये तो बात समझ में नहीं आ रही। तो देखो होता है क्या कि जो हमारा गैस का सिलेंडर रहता है एलपीजी का, जो कोई भी ये सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है, गंदा सा सिलेंडर है मान लीजिए, अच्छा सा। अब ये सिलेंडर के अंदर क्या कह रहा था, जो हमारी गैस होती है ना खाना पकाने की रसोई गैस, उसको बड़े प्रेशर के साथ में अंदर भरा जाता है, फिल किया जाता है, ठीक है। अब उसको भरते चले गए, अंदर की जगह तो हो गई फुल हो गई। अब अंदर की जगह के फुल हो जाने के बावजूद भी उसको मजीद दबाव के जरिए से और गैस को अंदर दबाया जाएगा। अब क्या होगा? पहले तो थोड़ी सी गैस भरी हुई थी तो जर्रात कैसे थे? दूर 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 दूर। फिर हमने क्या किया? जबरदस्ती की। इस कदर जबरदस्ती की गई कि जितने भी जो जर्रात थे वो बहुत ज्यादा दबाव की वजह से, बहुत ज्यादा दबाव की वजह से बिल्कुल एक दूसरे के कैसे आने लगे? करीब करीब आने लगे, ठीक है। करीब करीब आने की क्या वजह रहेगी? हमने बहुत ज्यादा दबाव से गैसेस को अंदर भेज दिया, गैस को प्रेशराइज हमने कर दिया। जब बहुत ज्यादा अंदर का दबाव बढ़ जाएगा, उसके जर्रात, उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब करीब आ जाएंगे, तो गैसी हालत से कौन सी हालत में चले जाएंगे? माय हालत में। मतलब है तो गैस, लेकिन दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, जर्रात का दरमियानी फासला कम होने की वजह से वो गैसी हालत से आ जाएंगे माय हालत के अंदर। माय हालत के अंदर आके फिर वो गैस को क्या कर देगा? बहुत सारी गैस जब यहाँ पर भर दी गई तो वो गैस को भर के फिर इसको हमने जो है सिलेंडर को सील कर दिया, पैक कर दिया। फिर जैसे ही आप देखते हैं कि गैस सिलेंडर का जो अगर आप नॉब खोलते हैं तो एक आहिस्ता से आवाज आती है, ठीक है, सी की आवाज आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि प्रेशर की वजह से गैस तो अभी माय हालत में, जैसे आप नॉब खोलते दबाव कम होता और गैस फिर पाइप से ऊपर आकर हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते। समझ में आ गई बात? तो ये उसके पीछे की वजह होती है। बहुत सारी बार लोग क्या करते हैं, गैस अगर खत्म हो गया तो गैस को जरा उल्टा पुल्टा करे, निकाल के जरा हिलाए उसको करे, तो वो गैस दोबारा से कुछ थोड़ा सा और चल जाता। वो क्यों होता कि वो जो कोई भी गैस है जो माया हालत के अंदर नीचे बैठेगी, उसको अगर आप शेक वगैरह करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, तो गैस एजिटेशन की वजह से जो है थोड़ा और ऊपर आ जाएंगी, इस्तेमाल के लायक हो जाएंगे। तो ये चीज उसके अंदर हमको देखने के लिए मिलती है कि अगर हम प्रेशर उसके ऊपर लगाते हैं तो जो कोई भी गैस है
अगर उसे दबाव लगाया जाएगा तो कौन से हालत में आ जाएगा, माई, ठीक है। लेकिन कब हमको करना पड़ेगा ये, ठीक है, दबाव की वजह से, ठीक है। मतलब इसका उल्टा, क्योंकि माए को अगर हम दर्जे हरारत देंगे तो गैस में जाएगा, और गैस को अगर हम दबाव लगाएंगे तो किधर आएगा, माए हालत के अंदर। तो मतलब मादे की हालत को तब्दील करने के लिए हमारे पास में दो चीजें, एक है दर्जे हरारत और दूसरा है दबाव, ठीक है। इसको कहा जाता है टेम्परेचर और इसको कहा जाएगा प्रेशर, ठीक है। ये दो चीज समझ आ गई बात। टेम्परेचर और प्रेशर दो चीजों की मदद से जो है किसी भी मादे की हालतों को तब्दील किया जा सकता है, ठीक। तो सिंपल सी बात थी, ये कुछ नुकात अभी हमने देखे, आपके सामने भी लिखे हुए बोर्ड के ऊपर। ठोस अजिया का हजम और शक्ल मुकर्रर होती, रकीक अशिया का सिर्फ हजम तो मुकर्रर होता है लेकिन शक्ल मुकर्रर नहीं होती, ठीक है। ये इस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसमें इन्हें रखा रहता है। फिर गैसों का ना हजम मुकर्रर है ना ही उनकी शक्ल मुकर्रर है, ये पूरी तरह से उस बर्तन में फैल जाते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है, और मादे की तीनों हालतों को दर्जे हरारत दबाव के हालात को तब्दील करके आपस में तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी बातों में अगर किसको कोई सवाल है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल ऑनलाइन मंडली की जानिब से? ओके, चलिए फिर हम जो है गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कि मादे की तीन हालतों को हमने समझ लिया, अब मादे की जमात बंदी, उसकी क्लासिफिकेशन, मादा। ओके, अब यहाँ पर जो है मादे की जमात बंदी की गई, मादे की जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई, उनके बारे में जरा कुछ बातें हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मादा, मादे की दो अकसाम है, आप जैसे पढ़ सकते, पहली किस्म, दूसरी किस्म आमिर। खालिस अशिया मतलब ये, खालिस मतलब क्या होता है, प्योर, जो कोई भी प्योर सब्सटेंसेस है इसको कहा जाएगा खालिस अशिया। और दूसरी चीज क्या है बच्चों, आमेजे। आमेजे को कहा जाता है, अंग्रेजी वाला नाम भी याद रखें, मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्स नाम के अंदर क्या रहा, मिक्स, आमेजा बनाना, मिक्स कर देना अलग अलग चीजों को, ठीक है। ये हो गया आमेजा। एक बिल्कुल खालिस अशिया के बिल्कुल खालिस शैती। अब दो या दो से ज्यादा खालिस चीजों को अगर हम मिला दें तो उनके आपस में मिलाने से क्या बन जाता है, आमेजा। देखेंगे इसको हम और अच्छे से, ठीक है। फिर जो खालिस अशिया है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से यहाँ पर समझना है। खालिस अशिया में भी फिर दो चीजें होती हैं, कुछ होते हैं अनासिर और कुछ होते हैं मुरक्कबात। अनासिर को कहा जाता है एलिमेंट्स, वैल्यू, क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्स, ठीक है। और जो मुरक्कबात होते हैं, क्या अपन बनता, कंपाउंड, क्या बोलते हैं उन्हें, कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। गैर मुतजानिस आमीज है, मुतजानिस आमीज है, ये क्या होते हैं भाई, गैर मुतजानिस मतलब हेट्रोजीनस मिक्सचर, और ये होते हैं होमोजीनियस, ठीक है। बस खाली आपको साथ साथ अंग्रेजी वाले नाम भी बता दिया, अब जरा इनको समझने की कोशिश करते, ठीक है। सबसे पहले खालिस अशिया को समझ लेंगे, आमीजों के ऊपर बाद में आते हैं। खालिस अशिया जो अपनी खालिस हालत के अंदर है, प्योर फॉर्म के अंदर जो अशिया मौजूद होती हैं उनको खालिस अशिया कहा जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी चीज मिली हुई नहीं रहना, खाली। जैसा कि अगर वाटर है, पानी, पानी होता है H2O, तो वो सिर्फ पानी, आपने उसमें शक्कर नहीं डाली, नमक नहीं डाली, कोई दूसरे उसमें सॉल्ट मौजूद नहीं है, तो वो कौन सी हालत के अंदर है, खालिस हालत के अंदर है। बात सीधी सी है, सिंपल सी बात। अब आ रहा थे अनासिर या एलिमेंट्स की तरफ, ठीक है। अब खालिस हालत में अनासिर भी हो सकते हैं और उसी खालिस हालत में मुरक्कबात भी हो सकते हैं। जैसा अनासिर को अगर हम देखें, हाइड्रोजन एक उनसुर है, उनसुर की जमा अनासिर, एलिमेंट की जमा एलिमेंट्स, ठीक है। हाइड्रोजन का एक, ये एक एलिमेंट हो गया। इसी तरह से कौन है उससे बड़ा वाला, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। टोटल कितने अनासिर हमको पता है अभी,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने अनासिर है? 118 ऐसे अनासिर हमको पता है कि इतने अनासिर हैं, ठीक है। तो ये अगर अपनी बिल्कुल ये खालिस हालत के अंदर है तो ये खालिस अशिया के अंदर आ जाएंगे। ऑक्सीडेंट खालिस हालत में, ये खालिस अशिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई, सीधी सी बात है। आपने वो देखा होगा ना, पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है आपने? पीरियोडिक टेबल, जदीद दौरी जदवल जिसको कहा जाता है, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पूरे 118 जो अनासिर एक साथ नजर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं मुरक्कबात की तरफ। मुरक्कबात, अब मुरक्कबात क्या रहते हैं अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में बताइए। हाँ, ये कह सकते हैं दो तीन साथ मिल गए वो तो मुरक्कबात में लेंगे, मतलब दो या दो से जायद अनासिर मिलकर, ठीक है। दो या दो से जायद अनासिर मिलकर मुरक्कब बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से जायद अनासिर मिलकर क्या बनाते हैं? मुरक्कब। दो भी चलते, दो से जायद भी चलते, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें कि अगर हमारे पास है एक हाइड्रोजन, वो मिल जाए एक और हाइड्रोजन से, दोनों मिलके बना लिए H2, वो क्या हो गया? मुरक्कब। H2O, ये क्या हो गया? मुरक्कब। NH3, ये क्या हो गया? मुरक्कब। CH4, ये क्या हो गया? मुरक्कब। कंपाउंड है सारे के सारे, इसमें एक उनसुर आ गया कार्बन, एक उनसुर आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा शक्कर अपनी क्या रहती? शक्कर सी, सॉरी C6 नहीं, वो तो ग्लूकोज हो जाएगा। C12H22O11, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 12 कार्बन आ साथ में आ गए, 22 हाइड्रोजन आ गए और 11 ऑक्सीजन आ गए, तो इनके मिलाप से क्या बनेगी? अपनी शुगर बनेगी, ठीक है, सुक्रोज बनता है इस। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों? मुरक्कबात। तो खालिस हालत के अंदर पानी खालिस मुरक्कब हो गया, खालिस हालत में NH3 खालिस मुरक्कब, ये सारी चीजें खालिस हालत में, तो ये क्या हो गए सारे बच्चों? मुरक्कबात। क्या हो गए? याद रहेंगी बात, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अनासिर और मुरक्कबात, अनासिर भी अपनी खालिस हालत में हो सकते हैं और दो या दो से जायद अनासिर मिलकर क्या बनाते हैं? मुरक्कबात। सीधी सी बात, ठीक है। तो हमें मादे के इन दोनों भी चीजों को पढ़ना है। यहाँ पर हम अनासिर के बारे में भी पढ़ेंगे, हम मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे। पूरी केमिस्ट्री इन्हीं चारों चीजों के बारे में आपको, अनासिर, मुरक्कबात, गैर मुतजानिस आमिज़ है, मुतजानिस आमिज़ है, कहीं ना कहीं इन्हीं के अतराफ में सारा इल्म कीमिया घूमते रहता है। अनासिर, मुरक्कबात, गैर मुतजानिस आमिज़ है और मुतजानिस आमिज़ है। समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हो, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको, बगौर मुलाहिजा फरमाएं कि जो अनासिर होते हैं ना, अनासिर, ये भी तीन तरह के होते हैं। मालूम किसी को? तीन कौन कौन सी तरह की होती? बहुत अच्छी तरह की होती। अनासिर की भी तीन होती है, यहाँ पर तफसीलात नहीं है लेकिन समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। एक को कहा जाता है धात, फिर दूसरा कौन हो जाएगा? अधात, तो फिर तीसरा कौन हो जाएगा? धात अधात, उसको कहा जाता है धात नुमा। क्या बोलते कते? धात नुमा। कते मालूम तुम्हारे को? कते क्या बोलते हैं उसको? धात नुमा। अगर उसके अंग्रेजी वाले नाम देखे, धात मन से आया है। धात का मतलब, सॉरी मेटलॉइड लिख रहा हूं, धात का मतलब होता है मेटल। तो अधात क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। और अधात, धातुमा को कहा जाता है मेटलॉइड, ठीक है। समझ लीजिए इन तीनों के दरमियान में बुनियादी बुनियादी फर्क हम देख लेते हैं और तफसीलात फिर कभी देखें। जैसा धातों के अंदर क्या होती है? सख्ती होती है, नरमी होती है? सख्ती होती है, ठीक है। मतलब किसी का सर फोड़ना है तो लोहे की रॉड लेना पड़ेगा आपको, प्लास्टिक से काम नहीं चलेगा। अरे तुम इस बात बता रहा हूँ, ठीक है, फोड़िए मत जाके किसी, लेकिन सख्ती चाहिए भी। जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर आप जो स्टील को यूज करेंगे, धात है या नहीं? तो धातु की सिफत क्या होती? एक तो उनके अंदर स्ट्रेंथ होती, ताकत होती,
इसी तरीके से उनको आप देखेंगे, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। अधात को वायर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, वायर बना सकते, इनके आप वरक बना सकते हैं, उसको तार पजीरी की खुसूसियत उनमें होती है, वरक पजीरी की खुसूसियत उनके अंदर होती है। और सबसे अहम खुसूसियत के बढ़ती रहो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से बहेगा या नहीं बहेगा, धातों में से बहेगा। जितनी भी धातें होती हैं उसको छोड़ दे तो उनमें से जो है हमेशा बढ़ती रहो बहती है। ये अच्छे मौसिल होते हैं बढ़ती रहो के, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। जबकि अधात, इनकी मिसालें क्या हो सकती है भाई, लोहा इसकी मिसाल हो सकता, कॉपर इसकी मिसाल हो सकता, सोडियम उसकी मिसाल हो जाएगा, मैग्नीशियम उसकी मिसाल होगा, ETC। ये धातें। अधातें, ऑक्सीजन क्या है, अधात। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या है, अधात। नाइट्रोजन क्या है, अधात। सल्फर क्या है, अधात। ये सारी अधातें हैं जिनकी खुसूसियात धातों से अलग होती है। धातें ठोस हालत में होंगी, सख्त होंगी। ये लिक्विड मतलब माई या गैसी हालत के अंदर होंगी, इनके अंदर सख्ती नहीं पाई जाती। वो अच्छी तरीके से बरकी रहो मतलब करंट को वो अच्छी तरीके से कंडक्ट करेंगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर आप लोहे की कील ले और किसी बोट के अंदर जाकर लोहे की कील को डाले, खटका खोल दे और कील को बाहर से पकड़ ले, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन क्या होगा, करंट लगेगा भाई, क्योंकि लोहे की कील में से करंट बहता हुआ आएगा। आप जाकर जो बिजली के तारों को पकड़ ले, क्या होगा, मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों भाई, बरकी रौ बहते हुए आपके जिस्म में दाखिल हो जाएंगी। लेकिन आप क्या करोगे, प्लास्टिक की चीज ले फिर बरकी रौ से आप कांटेक्ट करें, कोई मसला हो सकता है वहां पर, नहीं, क्योंकि प्लास्टिक अधात से बना है, उसके अंदर कार्बन मौजूद है। अधात उसके अंदर मौजूद होने की वजह से बरकी रौ का बहाव आप तक नहीं पहुंचेगा। और जो धात नुमा चीजें होती हैं, इनकी खुसूसियात धात और अधात इन दोनों के दरमियान की होती है। ठीक है, और हम बाद में उनको देखें, अभी के लिए इतना काफी कि अनासिर और मरकबात दोनों भी कौन सी अशिया, खालिस अशिया। ठीक है, अब बात आते हैं आमेजों की तरफ। ठीक है, आमेजों को हमने नाम दिया था मिक्सचर। पहला है गैर मुतजानिस, दूसरा है मुतजानिस। पहले मुतजानिस को समझ लेते, फिर गैर मुतजानिस को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो मुतजानिस आमीज़ें होती हैं, मिसाल से समझिए आप, पानी है, पानी क्या है, पूरा पूरा मुरक्कब है। ठीक है, हमने क्या लिया, एक गिलास लिया बच्चों, गिलास के अंदर है पानी। ठीक है, पानी के अंदर आपने क्या किया, कुछ शक्कर लिया, शक्कर को डालकर आपने अच्छे तरीके से घोल लिया, शक्कर पूरी तरह से घुल गई, पानी कैसा हो जाएगा, मीठा। ठीक है, अच्छा तो मीठा क्या होगा, अगर हम एकदम ऊपर से कुछ खतरे ले पानी के चखे, वो ज्यादा मीठे होंगे क्या, नीचे के खतरे ज्यादा मीठे होंगे क्या, सबका मीठापन एक जैसा रहेगा, नीचे का ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं होता, करके देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा। पानी के अंदर शक्कर पूरी तरीके से घुल चुकी। ठीक है, अब चाहे आप पहला खतरा लो ऊपर से कि बिल्कुल आखिरी का खतरा आप चखो, उसका मीठापन कैसा रहता है, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, शक्कर आप डालो, नमक डालोगे, पानी खारा, ऐसा नहीं होता कहीं और का पानी कम खारा, कहीं और का पानी ज्यादा खारा, गिलास के अंदर है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, शक्कर घुल गई थी, शक्कर तह में बैठी हुई नहीं है अपनी, याद रखिए उस बात को। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे मुतजानिस आमीजा होता है, उसके अंदर की जो खुसूसियात होती है पूरी अच्छी तरीके से तफसील हो जाती है। चलिए दूसरी मिसाल, और आपने क्या किया, शक्कर तो डाल दिए थे, शक्कर डालने के बाद में आपने जो है रूह अफ़ज़ा लिया ढक्कन भर के, और रूह अफ़ज़ा उसके अंदर डाल दिया, कैसा कलर हो जाएगा पानी का, लाल। ठीक है, पानी का कलर लाल होगा। ठीक है, अब पानी का कलर लाल है, उसको फिर हमने देख रहे हैं, तो ये खाली ऊपर ऊपर का हिस्सा लाल होगा क्या यहाँ पर, नहीं, पूरा हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। मतलब जो सारी खुसूसियात थी, जो चीजें हम उसके अंदर डालते चले गए, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उनकी जो तकसीम ऊपर से नीचे तक पूरी मसावी हो रही, उसको क्या कहा जाएगा, मुतजानिस आमेजा। ठीक है, आपने शक्कर डाल दिया, रूह अफ़ज़ा डाल दिया, अब थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ दिया उसके अंदर। ठीक है, तो लीमू की वजह से खट्टापन भी जाएगा, पूरा तकसीम हो गया, मेरा लीमू पानी अपने बनकर तैयार हो गया। जो लीमू पानी बना वो क्या था, मुतजानिस आमेजा, कि उसमें सारी खुसूसियात के हर घूंट का मजा आपको सेम नजर आएगा, हर घूंट अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, लीमू के बीच चबा गया आप आखिर में, तो वो मजा आपका अलग आएगा। ठीक है, छान लेना चाहिए उसको। लेकिन मुतजानिस आमेजा, बात समझ आ रही, कि ये ऐसा आमेजा होता है जिसके अंदर कई मुरक्कबात हमने मिला दी, एस्टो मिला दिए, इसके अंदर शुगर हमने मिला दिए, हस्बे जायका कुछ नमक भी आप डाल सकते हो, उसके अंदर आपने लीमू डाल दी, सारी चीजें मिल गई, कई मुरक्कबात मिल गए,
اور इनकी तकसीम बहुत मसावी अंदाज के अंदर होगी। इसको कहा जाता है मुतजानिस आमिज़ा। समझ में आ गया। अब आ रहा था गैर मुतजानिस आमिज़े की तरफ। गैर मुतजानिस आमिज़े के अंदर क्या होगा, यही गिलास लीजिए, गिलास में पानी ले लीजिए, उसके अंदर कुछ रेती पत्थर डाल दीजिए। क्या करेंगे, वो घुल जाएंगे रेत पत्थर, उसमें नीचे बैठ जाएंगे। मतलब अगर आप देखें कि ऊपर तो रेती पत्थर कोई नहीं, रेती पत्थर कहाँ बैठ गए, नीचे। मसावी तकसीम हो रही है अशिया की? नहीं, तकसीम यहाँ पर मसावी तौर से नहीं हुई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहा जाता है। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्या हो जाता, गैर मुतजानिस आमिज़ा। तो खाने पीने की बात हो रही, गैर मुतजानिस आमिज़े की ही मिसाल एक और आपको दे देता हूँ। चूड़ा देखा हुआ है सबने, ठीक है। चूड़ा, चूड़े के अंदर क्या रहेगा, कुछ सेव रहेंगे, कुछ पपड़ी आ जाएंगी, कुछ फली के दाने इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या चीजें उसके अंदर अलग अलग और चीजें आते चलेंगे, सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई उसके अंदर अलग 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 तौर से, ठीक है। सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक। कभी हो सकता है फली के दाने चुन के खा ले, कभी कोई और चीज खा ली। तो क्या हुआ, वो हो गया गैर मुतजानिस आमिज़ा, वो आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से घुले मिले हुए नहीं। जैसा हवा की मिसाल लें, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसेस हैं मौजूद। अब ये जो गैसेस यहाँ मौजूद है, ये सब आपस में पूरी तरह से घुली मिली हुई ना। ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन एक कोने में चली गई कमरे के, नाइट्रोजन दूसरे कोने में चली गई, ऐसा होएगा? सब आपस में घुल मिल के, मतलब जो हमारी हवा होती है वो होता है एक मुतजानिस आमिज़ा। कैसा आमिज़ा होता है? मुतजानिस आमिज़ा। कुछ आमिज़े होते हैं जो होते हैं गैर मुतजानिस। जो मुतजानिस, इनको कहा जाता है होमोजीनस, और जो होते हैं गैर मुतजानिस उन्हें कहा जाता है हेट्रोजीनस। ठीक है। तो बच्चों ये कुछ बातें थी मादा, मादे की जो हालत है, देखिए मादे की अकसाम अभी हमने देख ली कि मादा खालिस अशिया, आमिज़े, खालिस अशिया में अनासिर और मुरक्कबा, और फिर खालिस अशिया के जो अनासिर होते हैं उसमें अनासिर की तीनों भी जो बातें हैं, इसके अंदर हो सकता है धात, अधात या धातनुमा, तीनों को हमने देखा, मुरक्कबात के ताल्लुक से समझा, और आमिज़े में गैर मुतजानिस आमिज़े और मुतजानिस आमिज़े, इन दोनों के बारे में भी कुछ बातें अभी हमने देखी। इसमें किसी का कोई सवाल, बच्चों बच्चियों? नो सवाल या यस सवाल? नो सवाल, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ लीजिए कुछ बात, ये जो हमने देखा था अनासिर, यहाँ पर क्या है, उन मुख्तलिफ अनासिर के एटम समझने के लिए, हाइड्रोजन कैसा है, छोटा, ऑक्सीजन थोड़ा सा बड़ा, नाइट्रोजन बड़ा, कॉपर उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी समझ लीजिए और कुछ बात कि ये जो तीनों भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये है आधार। आधार मतलब क्या है, ये नॉन मेटल्स। जबकि कॉपर और सोडियम जो है Cu और Na, ये है धात, मतलब मेटल्स, ठीक है। Cu मतलब क्या रहता है, कॉपर। क्या कहते हैं अपन आमतौर पे इसको, तांबा। जो तांबा है ना, ये कॉपर होता है, सोडियम, सोडियम ही, ठीक है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ अनासिर के यहाँ पर एटम भी जो है आपके सामने बने हुए, ठीक है। अभी एटम रहेंगे, अब जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे, जितने भी हाइड्रोजन ऐसे ही, जितने भी ऑक्सीजन रहेंगे वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर अलग, दुनिया के किसी कोने में वो अलग है। उन सब की खुसूसियात एक जैसी होती हैं, आगे हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह एटम के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये अनासिर, ये किसके बारे में हमने देख लिया, अनासिर के बारे में। दूसरी चीज क्या हमने देखे थे, मुरक्कबात। अब देखिए मुरक्कबात, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुरक्कबात कैसे बनते, दो या दो से ज्यादा अनासिर के मिलने की वजह से। जैसा एक हाइड्रोजन एटम किससे मिला, दूसरे हाइड्रोजन एटम से, दोनों ने क्या मिला, एक हाइड्रोजन का सालिम। कल याद है आपको जो 12th के लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था, अगर कुछ रिपीटर्स बच्चे अभी भी ऑनलाइन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे मिलते हैं आपस में, ठीक है, वो हम देख चुके थे। अगर किसी ने नहीं देखा तो बाद में उसको रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं बाद में। एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, क्या बना, हाइड्रोजन का सालिम। एक ऑक्सीजन का एटम, दूसरे ऑक्सीजन का एटम, मतलब दो एटम मिल रहे हैं अनासिर के, अब उससे क्या बन गया, ऑक्सीजन का एक सालिमा, ठीक है। सालिमा का मतलब क्या होता है,
समझ के चलिए सालिमा मतलब वही कंपाउंड या मुरक्कब जो हमने कहा ना, ये क्या बन गया उसका मुरक्कब। इसी तरीके से आप ये देखिए और कुछ साले में यहाँ पर बताए भाई, ये किसका सालिम है, पानी का सालिमा लिखा हुआ है यहाँ पर। H2O किससे मिला है, वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल गए, पानी का सालिमा यहाँ पर मर गया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है ये, जो हम सांस लेते वक्त अंदर उसको लेते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, ये वाली चीज। हमको ऑक्सीजन लगती है, पेड़ पौधों को क्या लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। CO2 एक कार्बन, कितने ऑक्सीजन है वहां पर, दो ऑक्सीजन वहां पर मौजूद थे, तो CO2 बन गए। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों, मुरक्कबात। तो और भी बहुत सारे मुरक्कबात होते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हम देख रहे हैं मुख्तसर अंदाज में, ठीक है। चलिए ये सारी बातें यहां पर हो गई, जो मादे की जो तकसीम हो सकती है कि मादे को किस तरह से तकसीम किया जा सकता है, एक तो मादे की हालतें, मादे की तकसीम। अब हमको जो है क्या करना है, अगली चीज मादे की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कहा जाता है तबई खुसूसियात, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन वो एक साथ नीचे आ गया, तबई खुसूसियात, तबगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी खुसूसियात, तबई खुसूसियात। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी खुसूसियात, कीमियाई खुसूसियात, तबई खुसूसियात, कीमियाई खुसूसियात, दो तरह की खुसूसियात होती हैं। जैसे कि समझ लीजिए मेरे हाथ में मान लीजिए लोहे का पेन है, किसका पेन है, लोहे, मतलब ये लोहा है, क्या ये लोहा, हम कहेंगे लोहा, इसको बोलते आयरन, क्या बोलते, आयरन। इसकी जो साइंसी अलामत है क्या है, Fe। अब आप इसकी दो तरह की खुसूसियात बता सकते हैं Fe की, ठीक है। जैसे इधर हम तभी खुसूसियात लिखने की कोशिश करते हैं, इधर कीमियाई खुसूसियात, ताकि आपको फर्क उसको समझ में आ जाए। तभी खुसूसियात का मतलब क्या होता है, उसकी जाहिरी खुसूसियात, फिजिकल खुसूसियात। कि लोहा हार्ड रहता, सॉफ्ट रहता, हार्ड रहता, तो भैया हार्ड है, ठीक है, हार्ड है, तो मतलब कौन सी खुसूसियत हो गई है, तबई खुसूसियत, ठीक है। अच्छा ये कमरे के दर्जा हरारत के ऊपर ठोस हालत में रहता, हार्ड रहता है, ये हो गया। तो इसी तरीके से आपको पता है किसी भी चीज का एक नुक्ता पिघलाव होता, नुक्ता उबाल होता, पता है आपको, ठीक है। नुक्ता पिघलाव मतलब मेल्टिंग पॉइंट, नुक्ता उबाल मतलब बॉइलिंग पॉइंट। कि अगर हम इसको क्या करें, दर्जे हरारत दे, गरम करे, गरम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, एक वक्त आएगा कि ये पिघल जाएगा। तो जिस दर्जे हरारत के ऊपर ये ठोस हालत से माय हालत में चला जाता, पिघल जाता, उस दर्जे हरारत को कहा जाता है नुक्ता पिघलाव। पिघलने के बाद में भी हम नहीं रुके, गरम उसको और करते रहे, गरम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, फिर एक वक्त आएगा कि माय हालत से कौन सी हालत में चल जाएगा, गैस हालत में, उसको कहा जाएगा नुक्ता उबाल। तो इनको कहा जाता है शॉर्ट में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नुक्ता पिघलाव, नुक्ता उबाल, मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में लिखा MP, ये मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। और ये बॉइलिंग पॉइंट नॉट ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कौन सी खुसूसियात होगी भाई, तबई खुसूसियात उसकी हो गई। इसकी तरह से आपने उसका कलर बता दिया, लोहे का कलर कैसा रहता, ठीक है, काला, ठीक है, जैसा भी उसका कलर है वो आपने उसका जो कलर यहाँ बता दिया। तो ये सारी खुसूसियात किसके अंदर आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई। समझ में आ गई बात। उसका टेस्ट कैसा रहता, लोहे को चक्के भी देख लिया आपने, ठीक है, कलर देख लिया, टेस्ट देख लिया, उसकी खुशबू देख लिया, उसकी स्मेल, ये सारी खुसूसियात तबई खुसूसियात है। यानी कि तबई खुसूसियात ये वो खुसूसियात होती हैं जिन खुसूसियात को देखने के लिए, समझने के लिए किसी भी मादे का कीमियाई तौर पर तब्दील होना जरूरी नहीं, कि वो अगर Fe था वो Fe ही रहेगा, चाहे वो ठोस हालत में रहो, माय हालत में रहो, का गैसी हालत के अंदर रहो, वो तब्दील होगा क्या, नहीं, लोहा लोहा है, कितने ही दर्जे हरारत के ऊपर ले चल रहा है। उसको हार्डनेस है वो देखने के लिए क्या लोहे को कोई और रिएक्शन करवाना जरूरी है, नहीं,
हार्ड है, पता चल जाएगा। मतलब इन चीज को समझने के लिए इसके अंदर कोई तब्दीली वाक़ई हो जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन अब आ जाते कीमियाई खुसूसियात की तरफ। कीमियाई खुसूसियात ये ऐसी खुसूसियात होती हैं जिन खुसूसियात को देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता उसकी कीमियाई तब्दीली का। जैसे मिसाल के तौर पर जो Fe है, मतलब लोहा, लोहे को जंग लगता है या नहीं लगता? लगता। ठीक है, लोहे को जंग कब लगता? हवा की मौजूदगी में, साथ ही साथ पानी की हवा और पानी दोनों साथ, O2 और H2O दोनों अगर उसको साथ में मिले, उसकी मौजूदगी में उसको जंग लगता और ये Fe तब्दील हो जाता है Fe2O3 डॉट NH2O में। किसमें तब्दील हो गया वो? Fe2O3। ठीक है, अभी समझ लीजिए इतना, बाद में कभी और देखेंगे। यहां पर था लोहा, लोहे को क्या लग गया है? ये जंग। ये जो मैं मसावात लिखा हूं इसके अंदर ये जो आपको मुरक्कब नजर आ रही है, जंग इस तरह से वो बन गया। लेकिन क्या Fe रहा? अब नहीं, ये बिल्कुल तब्दील हो गया, किसी और चीज के अंदर चला गया। ठीक है, Fe से Fe2O3 एक मुरक्कब उसने बना दिया। मतलब इसमें कीमियाई तब्दीली आई। कोई तबाही तब्दीली आई क्या यहाँ पर? नहीं, महज कीमियाई तब्दीली इसके अंदर आई। और ये कीमियाई तब्दीली को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है, तो ये कीमियाई तब्दीली को हमें करवाना पड़ेगा। ठीक है, जंग लगता हुआ देखेंगे, उसके वजह से कीमियाई चेंज आ जाएंगे इसको, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा कीमियाई तब्दीली। कि भाई ये हवा के साथ कैसे तामुल करता है, ये पानी के साथ कैसे तामुल करता है, ये तेजाब के साथ कैसे तामुल करता है, ये असास के साथ कैसे तामुल करता है, इसको जलाएंगे तो कैसे जलेगा, ठीक है, इसको फला केमिकल में डाल दिया तो कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारी चीजें कौन सी खुसूसियात में आ जाती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में, कीमियाई खुसूसियात में। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये हो गया उसकी बच्चों कीमियाई खुसूसियात और तबई खुसूसियात। दो तरह की खुसूसियात किसी भी मादे की हम बयान कर सकते हैं। जैसे कि ये पेन, इसकी तबई खुसूसियात आपको बतानी है, आप बता सकते हैं भाई ये पेन है, थोड़ा सा ये हार्ड है, ठीक है, इसका कलर ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसकी खुशबू ऐसी है, इसका नुक्ता उबाल इतना है, उसका नुक्ता पिघलाव इतना है। कौन सी खुसूसियात होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, तबई खुसूसियात। लेकिन दूसरी खुसूसियात, कीमिया खुसूसियात, भाई इसको पानी के साथ में हम रिएक्ट करवा के देखते हैं, पानी के साथ में रिएक्ट करता है क्या? करता है या नहीं करता? कौन सी खुसूसियात होगी? नहीं करता, ये भी कीमिया खुसूसियात। हवा में रिएक्ट करता है क्या? नहीं। उसको जलाकर देखते हैं, जलता है क्या? एसिड में डालकर देखते हैं, बेस में डालकर देखते हैं। बात समझ आ गई? अलग अलग और केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं। ये खुसूसियात को कहा जाएगा उसकी कीमिया खुसूसियात या केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से मादे की खुसूसियात। ठीक, इसमें किसी को भी सवाल? कोई सवाल नहीं? तो देखिए, ठीक, तबे खुसूसियात और उनकी पैमाइश वगैरह की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी अगर शुरू करेंगे तो वो बातें मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। अभी हम क्या करते हैं, एक हल्का सा इयादा करते चलते हैं बातों का। जो बातें आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहला मादे की हालतें हमने देखी। मादे की हालतें कौन कौन सी होती है? हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, दूसरी चीज हमने इसी के साथ में देखी थी कि मादे की हालतों में एक तो यही देख लिया था कि इसमें से किसका जो है हजम मुकर्रर है, किसकी जो शक्ल मुकर्रर है, वो बातें आ गई। वो सारी बातें, इनको तब्दील किस तरह से किया जाता, वो सारी बातें भी इसी के साथ हमने देखी। मादे की हालतें होगी, फिर मादे की हालतों के बाद में हमने क्या देखा? मादे की अकसाम। अकसाम, अब अकसाम के अंदर जो हमने देखा, कुछ होते हैं खालिस और कुछ होते हैं खालिस अशिया और फिर कुछ होते हैं आमेज़े। ठीक है, तो इन दोनों को हमने देखा, खालिस अशिया, फिर अनासिर मुरक्कबात, आमेज़े में मुतजानिस गैर मुतजानिस। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो है हमने क्या देखा? मादे की खुसूसियात। ठीक है, खुसूसियात भी हमने जो देखा अभी, तबई, और दूसरा हमने देखा कीमिया। ठीक है, तबई कीमिया खुसूसियात भी होगी। और कुछ बातें बचती हैं जिसके अंदर कुछ तबई खुसूसियात को और तफसील से हम देखेंगे।
ان کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلے لیکچر میں. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا سا بریک, پھر اپنا جو ہے 12ویں کا وہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے بچوں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. کہ